Here in this video, let us take exercise 3.1, and this exercise is actually activity based question to understand about the coordinate geometry. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? This is the activity based question. Means यहाँ पे हमको ये डिस्क्राइब करना है द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प. Table lamp is just like representing a point on your study table. Table that is the plane. किसी आदमी को ये बताना है कि उस टेबल में वो लैम्प कहाँ पे रखा हुआ है. हाउ टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन. सो हियर हाउ टू डिस्क्राइब दिस with the help of coordinate geometry, because here we have already discussed about what is the use of coordinate geometry. Because use of coordinate geometry is to represent a point on the plane. So here lamp is the point and table surface of the table is a plane surface, is just like a plane. So for this, let us see here how to write. Consider the lamp as a point and table as a plane. हमको यहाँ पे point चाहिए और एक plane surface चाहिए, plane चाहिए. And choose any two perpendicular edges of the table. जैसे suppose that this is the table हो गया, ये table का surface हो गया और यहाँ पे किसी भी दो edges को consider करना पड़ेगा. हम किसी भी corner से इसको measure कर सकते हैं. So here we have marked here this O. This is the origin. हम यहाँ से इसको start करेंगे to measure the position of a lamp. Here L be the lamp. Okay. So for this, let us take lamp as a point and table as a plane and choose any two perpendicular edges of the table. Measure the distance of the lamp from the longer edge. Let it be y. ये इसमें बोले हम कि जो लॉन्गर एज हो गया, जैसे ये हमारा लेंथ हो गया, इसका लॉन्गर एज हो गया, इस एज से हम इस पॉइंट को मेजर करेंगे. सो दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड लेट इट बी वाई. इसको हम वाई मान लेते हैं. इस डिस्टेंस को कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, बट हियर लेट अस टेक अ जनरल नंबर दैट इज वाई. ओके. सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्गर एज. And again measure the distance of the lamp from the shorter side, from the shorter edge. So this is the shorter edge and इस shorter edge से अगर हमको इस point को measure करना है तो हम इस ऐसे जा सकते हैं यहाँ से parallel, and this distance is also equal to this distance and let it be x. हम shorter side से इसको x मान लेते हैं और लॉन्गर एज इसको y मान लेते हैं. ओके. एंड सपोज इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द शॉर्टर एज बी x, देन द पोजीशन ऑफ द लैम्प इज एक्स वाई. जो इसका पोजीशन होगा वो डिनोटेड बाय द पेयर एक्स वाई. इट इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर. आर वाई एक्स, एक्स वाई भी हो सकता है, वाई एक्स भी हो सकता है. कोई स्टूडेंट अगर इसको y मान लेगा, इसको x मानेगा, तो इसका जो पोजीशन होगा वो डिनोटेड होगा बाय द वाई एक्स. सो इट इज़ डिपेंड ऑन द ऑर्डर वी फिक्स. हम किस ऑर्डर में उसको फिक्स करते हैं तो ये उसका लोकेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे ये लॉन्गर एज एंड शॉर्टर एज, दीज टू एजेस रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइंस. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यही पढ़ते हैं ना, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस. So this is the location of a point on the plane. So this is the activity, how to describe a point on the plane. Here its second question is street plan. कैसे हम लोग अगर बहुत सारी रोड क्रॉस करती हैं. Here it is given a city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along with the north south direction and east west direction. दो इसमें रोड दिया हुआ है. One is along the north south and other is along the east west, and all the other streets of the city runs parallel to these roads.
बहुत सारी जो रोड हैं वो इनके पैरेलल ही जा रही हैं, कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, कुछ ईस्ट वेस्ट में, एंड आर 200 मीटर अपार्ट। उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 200 मीटर। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। क्योंकि कॉपी में तो हम लोग 200 मीटर दूरी पे नहीं बना सकते, तो उस लेट अस चूज अ स्केल, सुटेबल स्केल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, and draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single lines. तो यहाँ पे बोला है कि एक मॉडल तैयार करिए जिसमें रोड किसको रिप्रेजेंट करेगी, सिंगल लाइंस को, लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, टू परपेंडिकुलर लाइंस। हियर दे रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर लाइंस एंड अदर स्ट्रीट्स, ये 5 स्ट्रीट हो गई पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ एंड 5 आर पैरेलल टू द ईस्ट वेस्ट। और यहाँ पे जहाँ क्रॉसिंग होगा हर स्ट्रीट का, दे रिप्रेजेंट अ पॉइंट। तो इसमें हमको रिप्रेजेंट किसको करना है, हाउ मैनी स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4 3 या 3 4 या 2 5। सो हियर दिस इज द लोकेशन 2 5। 2 5 का मतलब क्या हुआ, 2 मीन्स सेकेंड स्ट्रीट विच इज़ पैरेलल टू नॉर्थ साउथ। 5 मीन्स फिफ्थ स्ट्रीट। पहले जो नंबर आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले स्ट्रीट को, और जो दूसरा नंबर आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज़ पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट। सो 2 5 दिस पेयर 2 5। सिमिलरली पॉइंट ए, लेट द पॉइंट ए विच रिप्रेजेंट 4 3। 4 पहले आ रहा है मीन्स जो फोर्थ स्ट्रीट होगी, ये यहाँ पे दिया है फोर्थ स्ट्रीट, एंड दिस इज द थर्ड। सो दिस पॉइंट 4 3। बट यहाँ पे नंबर को अगर उसको ऑर्डर चेंज कर दोगे, जैसे 3 4, 4 3 का उल्टा हो गया 3 4, तो ये अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, एंड लेट इट बी बी। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द मॉडल, एंड यूजिंग द गिवन कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट stating that the street parallel to north south direction and then the street parallel to east west direction, we can refer the cross street 4 3 at A and 3 4 at B. क्लियर। यहाँ पे ये कन्वेंशन जस्ट लाइक ट्रेडिशन कि हम लोग ऐसे मतलब यहाँ पे पहले किस स्ट्रीट को लेते हैं, पहले कौन सा नंबर आता है फिर बाद में कौन सा नंबर आता है, तो ये एक ट्रेडिशन जैसे बन गया है। So here there are two crossing 4 3 and 3 4, and let they represent a point A and B, and these positions are unique ones because of the two reference lines we have used for locating them. और ये जो पोजीशन होगा यूनिक होगा, 4 3 अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 3 4 अलग को, और जरूर 3 4 इसके अलावा और हमको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ईच पॉइंट्स रिप्रेजेंट a unique place. So you can write in this way the solution of these two questions.